Dear students, welcome to the class Data Structure and Algorithms. So hope first video might you have already seen, and in that video we already covered about the all modules, whatever the topic we have to study we are related to the all those topics we already discussed. क्या टॉपिक है, इसमें क्या क्या ऑपरेशंस होने वाले हैं, ये जितना कुछ था, सिलेबस किस तरह से है, सिलेबस में क्या क्या है और उसका यूजेस क्या क्या है ना, उसमें ऑपरेशंस क्या क्या होने वाले हैं। और जब भी कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है तो कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, है ना, ये सारा बात हम लोग डिस्कशन में लाए थे फर्स्ट वीडियो में। आई होप माइट यू हैव सीन दैट, ओके। और इसमें मोस्टली जितना भी डेटा स्ट्रक्चर का एल्गोरिदम होगा वो सारे एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे डिस्कशन करना है और कंपेयर करेंगे कि कौन सा बेस्ट परफॉर्मेंस वाला एल्गोरिदम है। उस जो बेस्ट परफॉर्मेंस वाला एल्गोरिदम होगा उसको हम जो है सो सेलेक्ट करेंगे फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, है ना। कोई एक प्रॉब्लम है, उसका मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकता है, उस मल्टीपल सॉल्यूशन में कौन सा बेस्ट होगा वो जो है सो फाइनली सेलेक्ट होगा। और उस जो भी एल्गोरिदम बेस्ट होगा एमंग ऑल दो अवेलेबल एल्गोरिदम्स, तो किस स्केल पे हम कहेंगे, किस पॉइंट पे, है ना, किस बेंचमार्क पे कहेंगे कि ये जो एल्गोरिदम है वो बेस्ट परफॉर्मेंस वाला एल्गोरिदम है। तो उसका दो ही क्राइटेरिया है, एक काउंट करेंगे क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और दूसरा काउंट करेंगे क्या, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। So there are two basic scale on which we are going to measure the performance of all those algorithms based on the time complexity and space complexity. Time complexity for what? Time complexity used to tell you among all those solutions for a particular problem, which one is going to take the less time to give the output. And space complexity, among all those available algorithms for a particular problem, which one is going to take the less space to give the output or the result. That means in the less time, the less space uses, whichever the algorithm will give the best performance, that algorithm will consider as a best algorithm among all those provided algorithms for a particular problem, okay. तो बेसिस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग जो है सो किसी भी एल्गोरिदम को एनालाइज करेंगे, उसका एनालिसिस देखेंगे, है ना, जो कि फर्स्ट मॉड्यूल में आएगा उसका डिस्कशन, जिसको बोलेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन, हैं, उसमें क्या क्या नोटेशंस है वो सब हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज जैसा कि आफ्टर डिस्कशन ऑफ द सिलेबस, ये आपका फर्स्ट क्लास है और सब्जेक्ट का नाम क्या है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, है ना, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, राइट। तो हम लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिदम क्या है, और तब हम लोग देखेंगे कि ये जो है ना डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटा स्ट्रक्चर क्या है ना। तो आज के क्लास में हम लोग ये दो चीज़ का डिस्कशन करेंगे। व्हाट्स द सब्जेक्ट नेम? सब्जेक्ट नेम इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम. So first of all we will discuss about the algorithm, and thereafter we will do the discussion about what is data structure. So data structure and algorithm. So now coming to the algorithm part. About algorithm and their types. Algorithm
So very first question for any new topic is what? What is algorithm? है ना? What is algorithm? So we'll see. An algorithm is a well defined. Please remember, in your university exam, this is very famous question. What is algorithm and their characteristics or their types? Not type, I mean here it should be the characteristics. The best is called characteristics. TICS, characteristics. Okay, not type. The best way to say is about algorithm and their characteristics. Okay, so in the next slide you will see I am already discussing here characteristics of an algorithm. Okay, our characteristics S is missing here, characteristics. Okay, fine. An algorithm is a well defined, and second one is called a step by step procedure. Follow this. These are the keywords in the definition. What is that? Well defined, and second one is a step by step procedure or set of rules designed to perform a specific task or solve a particular problem. In the very first lecture, introduction to the syllabus, in that only I already mentioned. जैसे फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे तो हमने वहाँ एक एग्जाम्पल लिया है कि एक प्रोग्रामर है जिसका नाम है ये, दूसरा प्रोग्रामर है जिसका नाम है बी, है ना, और एक प्रॉब्लम के लिए कोई भी एक प्रॉब्लम, सपोज क्या प्रॉब्लम, राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर लिखने का एक प्रॉब्लम है. देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ना प्रॉब्लम का मतलब कि जैसे 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर लेकर के उसको जोड़ना है ना, और इसका रिजल्ट जो है सो प्रिंट कराना है. इसके लिए इसको बोलेंगे प्रॉब्लम. प्रॉब्लम मतलब हम लोग का जो जनरल लाइफ में प्रॉब्लम आता है ना, वैसा प्रॉब्लम नहीं. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जब भी प्रॉब्लम का बात आया, मतलब कोई एक टास्क है जिसको कंप्लीट करना है, तो यहाँ टास्क को क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम. सो 2 + 3 2 नंबर है जिसको कि जोड़ना है और जो रिजल्ट आएगा उसको डिस्प्ले कराना है मॉनिटर पे. इसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना है. यू हैव टू राइट द प्रोग्राम फॉर दिस. Got it? You have to write a program for this. So how you can say that this is a problem, and then we have to give the solution of this problem, means we have to write the code just to get the result of such problem. Okay? Hope you all are getting me. ये एक प्रॉब्लम है जिसमें 2 नंबर को जोड़ना है, उसका रिजल्ट जो है उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले करा देना है. इसको क्या बोलेंगे टेक्निकली, और अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फॉर्म में प्रॉब्लम. तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आएगा, तो इसका बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है ना. तो उस सारे सॉल्यूशन में उसको वो जो सॉल्यूशन आएगा तो कैसे आएगा, तो एल्गोरिदम के थ्रू आएगा. तो इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा. क्या, फर्स्ट जब भी आप देखते हैं तो वहाँ आता है स्टार्ट, और ओवल बना रहता है ना. इसे जो आप अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे जब सी प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे या C++ प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे, तो प्रोग्राम लिखने से पहले उसका सूडो कोड तैयार किया जाता है, और उस सूडो कोड को इसको क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट, है ना. जैसे कि स्टार्ट कर दिए, स्टार्ट के बाद जो है सो एक बॉक्स लेते हैं जिसको इनपुट बॉक्स बोलते हैं. यहाँ क्या लिखते हैं, रीड द नंबर. यहाँ लिखते हैं रीड द नंबर, है ना.
यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, सॉरी, यहाँ लिखते हैं रीड द नंबर, है ना। और फिर जो नंबर आता है, फिर आप देखेंगे कि कुछ ऐसा बॉक्स रहता है, फिर इस बॉक्स से ऐसे एरो निकला रहता है, ऐसे होता है, फिर लास्ट में फिर ओवल होगा और यहाँ लिखा रहता है एंड। ये क्या है, इस तरह का जो है सो फ्लो चार्ट होता है ना। तो यूनिवर्सिटी लेवल में एक्चुअली हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं होता है ऐसा कि हम लोग पहले सूडो कोड लिखें, फिर जो है सो हम लोग उसका फ्लो चार्ट डिजाइन करें, और तब हम लोग जो है सो एल्गोरिदम, आफ्टर फ्लो चार्ट देयर इज अ प्रोसेस टू राइट द एल्गोरिदम, है ना, और एल्गोरिदम हम लिखें और तब जो है सो फाइनल कोडिंग पे जाएं। वी डोंट हैव सच प्रैक्टिस एट यूनिवर्सिटी लेवल, बट वंस यू विल वर्क इन इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जब आप काम करेंगे तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपको ऐसा प्रोसेस रखना होता है ना। इसलिए कि जब आप फ्लो चार्ट बनाते हैं या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो लोग पढ़े हैं वो लोग DFD, डेटा फ्लो डायग्राम, DFD, राइट, है ना, और भी डायग्राम होता है, यूज केस डायग्राम, है ना, एक्टिव डायग्राम, ऐसे है ना, सब डायग्राम्स होते हैं, है ना। तो जब फ्लो चार्ट हम बनाते हैं तो एक प्रॉब्लम का हम फ्लो चार्ट बना करके देख लेते हैं कि कहीं कहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा है ना, और तब जो है सो हम लोग एल्गोरिदम डिज़ाइन करने जाते हैं, और जब एल्गोरिदम डिज़ाइन हो जाता है तब हम लोग फाइनली इंडस्ट्री में उस एल्गोरिदम को दे देते हैं प्रोग्रामर को, जो डेवलपर होते हैं, है ना, जो बीटेक करके जो फ्रेशर जो ज्वाइन होते हैं ना इंडस्ट्री में, जो कोडिंग करते हैं। तो कैसे कोडिंग करते हैं, ये फ्लो चार्ट फिर एल्गोरिदम उनको दे दिया जाता है, उस फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को देखते हैं और फिर जो है सो कोडिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे ये प्रैक्टिस नहीं है। जब एक प्रॉब्लम आएगा, राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर, है ना, राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो हम लोग क्या करते हैं, ये छोटा छोटा प्रोग्राम होता है, इसलिए हम लोग सूडो कोड नहीं बनाते। फ्लो चार्ट एक बार आपके प्रोफेसर बना कर दिखा देते हैं कि देखो फ्लो चार्ट क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आया तो उसका फ्लो चार्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं, और बाकी बाद में 1-2 प्रोग्राम के बाद में फ्लो चार्ट भी हम लोग नहीं बनाते हैं, और ना एल्गोरिदम हम लोग लिखते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। डायरेक्टली जो छोटा छोटा प्रोग्राम होता है ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली कोड पे आ जाते हैं और हम लोग डायरेक्ट कोड करने लगते हैं यूजिंग एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आइदर दैट इज C++, जावा, पाइथन, व्हाटएवर यू लाइक, है ना। इस तरह से हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, ओके। वही कहता है कि एल्गोरिदम क्या है, वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, यानी पहले क्या लेना है, रीड द नंबर, 2 नंबर पहले रीड करना है ना, उसके बाद स्टेप क्या होगा, फिर जो है सो 2 नंबर पे सम, एडिशन, सम ऑपरेशन अप्लाई करना है, फिर इस सम कोई एक वेरिएबल होगा, इसमें ये दोनों रिजल्ट जो 5 है, ये 5 यहाँ स्टोर हो जाएगा, और फाइनली प्रिंट द रिजल्ट, और सम को हम लोग प्रिंट करा देंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, प्रोसीजर हुआ, क्या प्रोसीजर है, और दूसरा क्या वर्ड है यहाँ, वेल डिफाइंड, ये बहुत समझना जरूरी होता है ना, वेल डिफाइंड, और तब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ओके, एंड देन सेट ऑफ रूल्स डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, सेट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ रूल्स, कैसा रूल, सेट ऑफ रूल, एक रूल नहीं, सेट ऑफ रूल, डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, क्या टास्क, ये टास्क 2 + 3, राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो ये 2 नंबर जोड़ना ये यहाँ एक टास्क है,
या इसको प्रॉब्लम भी बोलेंगे या टास्क भी बोलेंगे, सेम। सो परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और सोल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम। देखो बात आ गया ना, हम जो बोले या तो इसको टास्क भी बोलेंगे या प्रॉब्लम भी बोलेंगे, है ना। तो परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और सोल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना। तो ये एक टास्क है, क्या टास्क है? एडिशन ऑफ टू नंबर। या एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? एडिशन ऑफ टू नंबर, दो नंबर को जोड़ना है, ये प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन आपको देना है, कैसे? थ्रू कोडिंग। यू हैव टू राइट ए program, you have to do the coding so that your program should receive the two numbers and then that program should give the result, right? तो ये प्रॉब्लम है, एक टास्क है। तो एक सेट ऑफ रूल बनेगा और वो कैसा होगा? वेल डिफाइंड होगा और स्टेप बाय स्टेप होगा और द सेट ऑफ रूल होगा, है ना। फॉर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, सोल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम। Algorithms are the foundation of computer science and are used in various fields. What are those fields? Including software development. Software development हो, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या डेटा का प्रोसेसिंग हो या मशीन लर्निंग हो, जो आजकल आप लोग ट्रेंड सुन रहे हैं, AIML DL हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये जो आप लोग सुन रहे हैं ना, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एल्गोरिदम हो या डेटा प्रोसेसिंग का एल्गोरिदम हो, जो भी कुछ है वो क्या है? वो वेल डिफाइंड है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है या सेट ऑफ रूल्स है टू डिज़ाइन टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क, है ना। एक टास्क, कोई भी एक टास्क को, है ना, परफॉर्म करने के लिए एल्गोरिदम लिखना पड़ता है। फाइनली कंक्लूजन क्या है? कोई भी एक टास्क है उसको सोल्व करने के लिए एल्गोरिदम लिखना पड़ता है ना। और एल्गोरिदम का यूज कहाँ कहाँ है? हर जगह है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, डेटा प्रोसेसिंग हो, मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आपका जो कैलकुलेटर आप यूज करते हैं वो भी क्या है? एल्गोरिदम है। आप जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन में आपके बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो सब क्या है? एल्गोरिदम्स है ना। तो व्हाट इज एल्गोरिदम? इज क्लियर हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एल्गोरिदम? सो क्लियर हुआ? एन एल्गोरिदम इज ए वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ रूल्स डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और सोल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम। ये क्या हुआ? ये हुआ व्हाट इज एल्गोरिदम, है ना। उसके बाद ये कहता है एल्गोरिदम्स आर फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का फाउंडेशन कौन सा है? बेस क्या है? एल्गोरिदम्स ही है ना। इसलिए कि कंप्यूटर साइंस को यूज कर करके, यानी प्रोग्रामिंग को यूज कर करके जो भी टास्क आप करना चाहते हैं वो सब के लिए आपको एल्गोरिदम ही डिज़ाइन करना पड़ेगा। जिस कारण से क्या कहा जा रहा है? जब आप एल्गोरिदम ही डिज़ाइन करेंगे, इसीलिए कहा जा रहा है एल्गोरिदम्स आर द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस and are used in various fields including software development, data processing, machine learning and artificial intelligence। अगर ये भी पूछा जाए what are the applications of algorithm, then you can list out these all names। Hope it is clear for you what is an algorithm। Okay, now we are going to the next, and then we are going to discuss about characteristics of an algorithm। एल्गोरिदम का वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाँ, एल्गोरिदम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बोलते हैं फाइनाइटनेस। व्हाट डज इट मीन ऑफ फाइनाइटनेस?
An algorithm must always terminate. Must always terminate. जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं लैब में, तो बाई मिस्टेक, है ना, गलती से ऐसा आप देखे होंगे कि कंप्यूटर के स्क्रीन पे कुछ जो है ना, कुछ आउटपुट आ रहा है, है ना, और स्क्रीन जो है ना, ये आउटपुट बंद ही नहीं हो रहा है। कुछ एक स्क्रीन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे स्क्रीन आ रहा है। जब आपसे कंट्रोल नहीं होता है तो आपके जो लैब इंस्ट्रक्टर हैं या आपके जो प्रोफेसर हैं, जब उनसे आप हेल्प लेते हैं तो बोलते हैं कि जो तुम लूप लगाए हो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया है, इनफाइनाइट लूप। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप जो है ना हो गया है। यानी कि आप लोग को प्रैक्टिस होगा, जब हम फॉर लूप यूज करते हैं, है ना, तो फॉर लूप कितने सेक्शन में बटा होता है, 3 सेक्शन में। n = 0, n <10 और n ++, ऐसा कुछ लिखते हैं ना आप, है ना। n = 0, n = 0, n <10, ओके, n ++, यानी 0 से n का वैल्यू 0 से शुरू होगा, और जब n तक पहुंचेगा यानी कि <n आएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये जो है सो उस टाइम में लूप जो है सो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी लूप बंद हो जाएगा। तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, जो वैल्यू n <10 यानी 0 से शुरू होकर के 9 <10, यस, 10 <10 नो, सो ये क्या प्रिंट करेगा, 0 से 9 तक प्रिंट करेगा, है ना। यही लूप अगर मिस्टेक्स हो जाए, लूप में अगर मिस्टेक्स हो जाए, है ना, तो क्या होगा, ये लूप बंद ही नहीं होगा और नंबर स्क्रीन पे प्रिंट होते चला जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप, और इसको बोलते हैं लूप टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लूप टर्मिनेट नहीं हो रहा है मतलब आपका प्रोग्राम कहीं टर्मिनेट नहीं होगा, वो प्रोग्राम रन करते जाएगा, आउटपुट देते जाएगा, रन करते जाएगा, आउटपुट देते जाएगा, और ये कंटिन्यूअस वे में चलेगा, है ना। तो जब इनफाइनाइट लूप हो जाता है तो स्क्रीन पे आउटपुट आएगा, फिर एक स्क्रीन, दूसरा स्क्रीन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे स्क्रीन आते जाता है ना। तो देखो उसको बोलते हैं क्या, फाइनाइटनेस मीन्स व्हाट, एन एल्गोरिदम मस्ट ऑलवेज टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि एल्गोरिदम कोई भी प्रॉब्लम इन द सेंस टास्क, व्हाट इज द टास्क, ऐड एडिशन ऑफ 2 नंबर, है ना। इस टास्क के लिए आप जो भी एल्गोरिदम लिखेंगे वो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा या सेट ऑफ रूल होगा। तो जब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए, है ना, तो उसमें फर्स्ट कंडीशन मीट होना चाहिए, क्या, फाइनाइटनेस, यानी जो आप एल्गोरिदम लिखेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एल्गोरिदम फाइनाइटनेस होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन ऑफ फाइनाइटनेस, दैट एल्गोरिदम शुड मस्ट स्टॉप, दैट एल्गोरिदम शुड मस्ट टर्मिनेट after a finite number of steps. Okay, so that is the first need of the algorithm, that is the first characteristics of an algorithm. Okay, an algorithm must always terminate after a finite number of
स्टेप्स, है ना। जैसे यहाँ हम लोग एग्जाम्पल क्या लिए, फॉर लूप लगाए, n का वैल्यू 0 रखे, n लेस देन 10 किए और n प्लस प्लस कर दिए, तो क्या होगा, n का वैल्यू 1। ये कैसे एग्जीक्यूट करता है, तो आप अगर देखेंगे तो n का वैल्यू क्या है, 0, तो 0 लेस देन 10, यस एंड नो, रिजल्ट इज यस, तो क्या होगा, यहाँ 0 प्रिंट कर देगा। फिर n प्लस प्लस, तो n प्लस प्लस मतलब n का वैल्यू बढ़ गया, कितना टाइम, 1 टाइम, तो 0 प्लस 1 रिजल्ट क्या होगा, 1। फिर यहाँ ये 0 से हट के क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1। अगेन कंपेरिजन, n 1, n का वैल्यू 1, 1 लेस देन 10, 1 10 से छोटा है, रिजल्ट इज यस। जब 1 10 से छोटा है, रिजल्ट इज यस, यस, तो क्या करेगा, यहाँ ये 1 प्रिंट कर देगा, क्या करेगा, ये यहाँ 1 प्रिंट कर देगा। 1 प्रिंट करते फिर लूप कहाँ जाएगा, यहाँ इस पार्ट पे, क्या है, n प्लस प्लस, n प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, n का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो n का वैल्यू अब 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ 1 का था, अब क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 2 हो गया, 2, n का वैल्यू 2 है, यानी 2 लेस देन 10, 2 10 से छोटा है, 2 लेस देन 10, यस, 2 लेस देन 10। जब ये कंडीशन ट्रू हुआ, फिर क्या होगा, ये 2 जो है सो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, और जब ये 2 प्रिंट होगा तो फिर लूप कहाँ आएगा, कंट्रोल कहाँ आएगा, यहाँ n प्लस प्लस पे, n का वैल्यू क्या है, 2, यानी 2, अब प्लस 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 यानी 1 इसमें जुटेगा, क्या हो जाएगा, 3। अब n का वैल्यू 2 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 3। फिर कंपैरिजन, 3 लेस देन 10, 3 10 से छोटा है, 3 लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, यस, 3 इज लेस देन 10, क्या होगा, 3 यहाँ प्रिंट हो जाएगा, और फिर कंट्रोल यहाँ आएगा, और फिर ये क्या है, n प्लस प्लस, यानी n का वैल्यू 3 था, प्लस प्लस यानी 3 प्लस 1 वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ कंपैरिजन होगा, कंडीशन ट्रू होगा, 4 प्रिंट कर देगा, फिर n प्लस प्लस यानी 4 प्लस 1, n वैल्यू बिकेम 4, this was 4 then 5, so this became 5, और ऐसे करते करते ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, 9 तक, 9 तक, है ना। सो and after 9 what will happen, after 9 once n value, so let me to erase this one, let me to erase this one for the better understanding, okay. So once n value is 9, thereafter what will happen, thereafter what will happen, once n value is 9, then what will happen. So now we will ask the question, n 9, that means what is that, 9 less than 10, 9 less than 10, 9 जो है 10 से छोटा है, यस 10 से छोटा है, तो क्या करेगा, ये यहाँ 9 को प्रिंट कर देगा, और 9 प्रिंट होते ही फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। जब यहाँ पे कंट्रोल जाएगा तो क्या होगा, n प्लस प्लस, और n का वैल्यू क्या है, 9 है, 9 प्लस 1 व्हाट इज द रिजल्ट, 10। जब 10 हो गया तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, 9 से क्या हो जाएगा, 10। अब क्या होगा, 10 लेस देन 10, 10 से छोटा है, रिजल्ट इज यस एंड नो, ट्रू और फॉल्स, इस बिकेम फॉल्स। 10 से छोटा है नहीं, ये गलत हो गया, गलत हो गया,
तो लूप क्या होगा, ये प्रोग्राम क्या होगा, प्रोग्राम यहीं टर्मिनेट कर जाएगा, प्रोग्राम यहीं टर्मिनेट कर जाएगा। और जब प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा तो आउटपुट क्या होगा, 0 to 9। और यही जो टर्मिनेशन होगा प्रोग्राम का, ये चीज़ होना चाहिए एल्गोरिदम में, ये चीज़ होना चाहिए प्रोग्राम में। इसीलिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फाइनाइटनेस। होप इट इज क्लियर फॉर यू, राइट। क्या है ये, फाइनाइटनेस। तो फाइनाइटनेस क्या होता है, एन एल्गोरिदम मस्ट ऑलवेज टर्मिनेट आफ्टर ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो फाइनाइट नंबर स्टेप्स क्या हुआ, एन का वैल्यू 0 से शुरू हुआ 9 तक गया, और 9 के बाद जैसे ही एन का वैल्यू 9 से 10 हुआ, तो यहाँ जो कंडीशन जो है ना, n लेस देन 10, सो n वैल्यू इज 10, 10 लेस देन 10, इट्स बिकेम false. False means loop, your program has terminated here. So this is required in the programming or in the algorithm. इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइटनेस। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे कि फाइनाइटनेस क्या होता है। ओके, वेरी गुड। इट शुड नॉट रन इनफाइनाइट, देखो आ गया ना बात, इट शुड नॉट रन इनफाइनाइटली और एंटर इनटू इनफाइनाइट लूप, और इसको इनफाइनाइट लूप में एंटर नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होना चाहिए। यानी कि जब ये कंडीशन मीट नहीं हुआ, यानी n लेस देन 10, और 10 का वैल्यू भी यहाँ क्या हो गया, 10 हो गया, यानी 10 लेस देन 10, 10 लेस देन 10, तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया मतलब ये लूप यहाँ टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट कर गया मतलब ये क्या हुआ, इस प्रॉपर्टीज़ को, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं या प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं, यानी इस प्रॉपर्टीज़ को इसने फॉलो किया, फाइनाइटनेस को इसने फॉलो किया। यस, ऑलवेज टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। यस, आफ्टर फाइनाइट नंबर मीन्स 0 to 9 number of steps. Yes, this is going to terminate. This is going to terminate. So this is following the first properties, that is called finiteness. Now the second one, if you'll see, so that is called what? Definiteness. Definiteness. What is this definiteness? So this definiteness is nothing but every step in the algorithm must be precisely and unambiguously defined. There should be no room for interpretation in how the steps are carried out. Got it? क्या लिख रहा है? Every step in the algorithm must be precisely and unambiguously defined. है ना? Precisely and unambiguously defined. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि suppose for addition of two number, आपने क्या किया? For addition of two number आपने क्या किया? आपने ये एल्गोरिदम डिजाइन किया, और सपोज टोटल एल्गोरिदम जो है सो स्टेप 1 से स्टेप 10 तक है, स्टेप 1 to स्टेप 10 है ना। टोटल कितने स्टेप्स का एल्गोरिदम है? फॉर दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपने एक एल्गोरिदम लिखा, और वो एल्गोरिदम में कितने स्टेप्स हैं? 10, फ्रॉम 1 to 10 स्टेप्स हैं। तो
डेफिनिटनेस क्या कर रहा है? एवरी स्टेप इन द एल्गोरिदम मस्ट बी प्रिसाइजली एंड unambiguously defined. Unambiguously means whatever these all steps are there, the work for each and every step should be unique. Remember it. Whatever the steps are there, for each and every steps, the work or the purpose of each and every step should be unique. Unique doesn't mean जो स्टेप 1 काम कर रहा है वही स्टेप 8 भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं। इसीलिए इसको क्या वर्ड यूज किया गया? अनएम्बिगियस। क्या वर्ड यूज किया गया? अनएम्बिगियस। तो ये जो स्टेप 1 है और स्टेप 10 है, इस बीच में कहीं भी किसी एक दूसरे स्टेप का वर्क ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यानी कि सबका अपना अपना वर्क होना चाहिए। हर स्टेप का अपना अपना मीनिंगफुल वर्क है, कहीं एक दूसरे में वर्क में संदेह नहीं है ना। तो इसको टेक्निकली वर्ड यूज करते हैं अनएम्बिगियस, है ना। अनएम्बिगियस मीन्स जितना स्टेप्स है ना वो क्लियरली डिफाइंड है और हर स्टेप्स का अपना अपना पार्टिकुलर एक्शन है ना। हर स्टेप्स का अपना पार्टिकुलर एक्शन है और कोई भी स्टेप किसी भी स्टेप से मिलता जुलता नहीं है। सारे स्टेप्स क्या हैं? यूनिक हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? प्रिसाइजली एंड अनएम्बिगियसली डिफाइंड, है ना। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डेफिनिटनेस। होप इट इज क्लियर फॉर यू, राइट? दिस इज व्हाट? डेफिनिटनेस। There should be no room for interpretation in how the steps are carried out, है ना। No room for interpretation in the how the steps are carried out. और क्या होना चाहिए? किसी भी एक दूसरे स्टेप से कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं, कहीं इसका वर्क इससे भी मिलता है, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 2 स्टेप्स को एक ही काम के लिए लिख दिया है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनएम्बिगियसली डिफाइंड। यानी जो भी स्टेप्स है, जितना भी स्टेप्स है, ये सारे स्टेप्स का वर्क अलग अलग है और ये सारे स्टेप्स यूनिक हैं, है ना, यूनिक हैं। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं क्या? सेकेंड प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं डेफिनिटनेस। थर्ड प्रॉपर्टी और द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स of an algorithm is called what? Input. An algorithm can have 0 or more inputs. Yes, a algorithm can have 0 or more inputs. Input हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। Which are the value or data provided to the algorithm for processing. आपने कोई ऐसा एल्गोरिदम लिखा है ना, जिसमें कि किसी भी तरह की इनपुट की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ लिखा गया क्या? एन एल्गोरिदम कैन हैव 0 और मोर इनपुट। इनपुट नहीं भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है ना। आइदर दैट कुड बी 0 और मोर देन 1 इनपुट। गॉट इट? सेकेंड वन, द फोर्थ वन, the fourth property is called output. Okay, the fourth property is called output. What is this output? An algorithm must produce at least one output. और देखो, ये जब हम लोग प्रोबेबिलिटी जब पढ़ते हैं मैथ में, तब पता चलता है कि एट लीस्ट का मतलब क्या होता है और एट मोस्ट का क्या मतलब होता है ना। एट मोस्ट का क्या मतलब होता है? एट लीस्ट मीन्स मिनिमम, मिनिमम टू मिनिमम। एट मोस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम। एट लीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 1 आउटपुट। कोई भी आप एल्गोरिदम लिखते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप एल्गोरिदम लिखते हैं, उसमें
कम से कम एक आउटपुट जरूर होना ही चाहिए। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? आउटपुट। इस फीचर को, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? आउटपुट, है ना। यानी कि जो भी प्रॉब्लम हो, उसका जो भी एल्गोरिदम डिज़ाइन होगा, उस एल्गोरिदम का एक एटलीस्ट कम से कम एक आउटपुट तो जरूर होना ही चाहिए। द आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ द एल्गोरिदम्स एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन द गिवन इनपुट। तो ये आउटपुट क्या होगा? ये आउटपुट क्या होता है? एक्चुअली जो रिजल्ट का, एल्गोरिदम का जो रिजल्ट होता है, एल्गोरिदम जब एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिजल्ट होता है, उसी को बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं क्या? आउटपुट। आउटपुट। सो आउटपुट क्या होता है? क्लियर? ओके। नाउ इफेक्टिवनेस, है ना। इफेक्टिवनेस, द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड व्हाट? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होता है? The steps of the algorithm must be basic enough that they can be carried out in principle by a human using paper and pencil, and they should be computationally feasible, है ना। इफेक्टिवनेस, जैसा कि हम बताए कि कोई एक प्रॉब्लम है जिसका कि आपने एल्गोरिदम लिखा कैसे? 1 to 10, है ना। 1 to 10 तक में आपने एल्गोरिदम लिखा। तो ये जितना फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया, ये सारे स्टेप्स क्या हैं? इनका कुछ ना कुछ परफेक्ट मीनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्ट मीनिंग होना चाहिए। यानी इनका हर स्टेप्स का अपना एक परफेक्ट वर्क होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या करेगा, सेकेंड स्टेप क्या करेगा, थर्ड स्टेप क्या करेगा, और अप टू 10th स्टेप क्या करेगा, सबका अपना पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए। उस फीचर को, उस प्रॉपर्टीज़ को, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस। क्लियर? इफेक्टिव होना चाहिए, हर स्टेप इफेक्टिव होना चाहिए। नाउ द सेकेंड विल थी, दैट इज कॉल्ड द जनरलिटी। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये कोई ऑथर इसको कंसीडर नहीं करते। आप एल्गोरिदम का कोई भी बुक लेंगे, उस बुक में आप देखेंगे कोई ऑथर इस प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं करते, कोई ऑथर इस प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं। ये क्या होता है? An algorithm should be applicable to a broad set of problems. Algorithm should be applicable to a broad set of problems or a class of inputs. It should not be specific to just one case unless it is designed for a particular task. What does it mean? Applicable to a broad set of problems, class of inputs. Suppose आप जब भी एडिशन ऑफ 2 नंबर का ये करेंगे, एल्गोरिदम लिखेंगे, एडिशन ऑफ 2 नंबर का जब भी आप एल्गोरिदम लिखेंगे, तो कोई भी नंबर हो, वो एल्गोरिदम हर कोई भी 2 नंबर के लिए, अगर ये 2 नंबर 2 और 3 की जगह पे अगर हम 100 और 500 कर दें, तो भी जो एल्गोरिदम हम ये 2 नंबर को ऐड करने के लिए लिखे हैं, दैट एल्गोरिदम शुड आल्सो वर्क फॉर दिस 2 नंबर 100 and 500. मे बी दिस इज द सिंगल डिजिट नंबर, बट दिस इज ट्रिपल डिजिट नंबर, है ना। लेकिन ट्रिपल डिजिट का हो या 4th डिजिट का हो या 5th डिजिट का हो, है तो 2 ही नंबर ना, यानी
कि जो हम एल्गोरिदम फर्स्ट प्रॉब्लम, ये जो पहला प्रॉब्लम है एडिशन ऑफ टू नंबर के लिए हम डिज़ाइन किए हैं, सेम एल्गोरिदम शुड ऑल्सो वर्क फॉर दिस टू नंबर। अगर वर्क कर रहा है तो जनरली जब दो नंबर को हम अब दो नंबर को ऐड करने के लिए जो एल्गोरिदम लिखे हैं वो भले ही सिंगल डिजिट का हो, लेकिन उस एल्गोरिदम पे अगर हम ट्रिपल डिजिट, डबल डिजिट, फोर टाइम्स ऑफ डिजिट या 5 टाइम्स ऑफ डिजिट को भी अगर हम दो नंबर पास करेंगे तो वो एल्गोरिदम वर्क करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए ये भी जो प्रॉब्लम है एडिशन ऑफ टू नंबर का है और ये भी जो प्रॉब्लम है एडिशन ऑफ टू नंबर का है। डिफरेंस क्या है? लेंथ ऑफ डिजिट्स। यहाँ सिंगल लेंथ का डिजिट है और यहाँ ट्रिपल लेंथ का डिजिट है। इसके जगह के पे अगर हम 1000 और 5000 कर देते 4 डिजिट लेंथ का नंबर हो जाता। फिर भी सेम एल्गोरिदम उस प्रॉब्लम के लिए भी अप्लीकेबल होना चाहिए, वर्क करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हम दो ही नंबर दे रहे हैं एडिशन के लिए, राइट। ऐसा जब प्रॉपर्टी होता है, ऐसा जब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है तो उसको बोलते हैं जनरलिटी, राइट। एंड नाउ द second last is there, that is called correctness. An algorithm must correctly solve the problem it is designed to address. क्या मतलब? जब हम एल्गोरिदम लिखेंगे 2+3 के लिए तो क्या होना चाहिए? वो करेक्टली इस प्रॉब्लम को सोल्व करे। जो एल्गोरिदम हम लिखेंगे 2+3 के लिए, है ना, तो ये करेक्टली सोल्व होना चाहिए, है प्रॉब्लम इट इज़ डिज़ाइन टू एड्रेस। और ये क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है हाउ टू राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर। सो whenever you develop a algorithm for addition of two number, and once you are going to give the solution solution to this problem, then what's the algorithm you develop? That algorithm should give the correct result. That is called correctness. Now the last one is there, that is called efficiency. An efficient algorithm minimizes the use of resources such as time and memory. As I told you in the very first introduction to the syllabus, in that class only I have taken one example and I already discussed with that. There is a one person, that name is A, another person, that name is B. For a particular problem, suppose for this problem, he is also writing the program which is taking 5 seconds to give the output and this is taking 9 seconds to give the output. Then which one is the faster? This one is the faster, which is written by a programmer named A. So that what? An efficient algorithm minimizes the use of resources such as time and memory. So whichever will take the less time, whichever will take the less space, what I told in the first class, time complexity and space complexity, these two things, time complexity and space complexity, जो प्रोग्राम कम समय लेगा और कम स्पेस लेगा वो प्रोग्राम क्या होगा? बेस्ट प्रोग्राम होगा, है ना। और अगर इस कंडीशन को मीट करता है उसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। एल्गोरिदम का लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है? लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एफिशिएंसी। Algorithms are often compared based on their time complexity, how long they take to run, and space complexity, how much memory they required, है ना। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का हम बात किए, यही जो है सो, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसका एल्गोरिदम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन
एल्गोरिदम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम। तो आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन किए, जो हम लोगों का सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, तो हम लोग एल्गोरिदम का बेसिक ओनली डिफिनीशन जो है सो हम लोग जो है सो डिस्कस किए। एल्गोरिदम का हम लोग बेसिक चीज़ डिस्कस किए, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे पार्ट का, जिसका क्या नाम है, डेटा स्ट्रक्चर, है ना। डेटा स्ट्रक्चर का डिफिनीशन और कुछ फंडामेंटल चीज़ हम लोग कवर करेंगे, और देयर आफ्टर विल स्टार्ट आवर सिलेबस। तो ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम क्या है ये चीज़ हम लोग समझें। एल्गोरिदम इज़ वेल डिफाइंड एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू गिव द सॉल्यूशन फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है ये हम देखें, है ना। और नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और ऐसा कुछ, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, और जब भी देखिए तो पेन एंड पेपर के साथ, ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप नोट करते चले जाइए, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। और फिर से यानी इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे देखिए, है ना। जब रिवीजन करेंगे तो जितना कुछ हम आपको बात बताए हैं, पेशेंस के साथ इसको आप वॉच कीजिए। पेशेंस के साथ में पेन एंड पेपर रखिए, अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए इस वीडियो से। आप देखेंगे कि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो हमने बहुत सारा एग्जाम्पल लेके आपको सारे कंसेप्ट हम बताए एक एक करके, ठीक है। सो जस्ट कीप ऑन डूइंग द रिवीजन, and again we'll see in the next class with the next topic. Bye bye.